this is me, Saira Iqbal Khan from the Wobble Hearts. और अभी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ थी जिसमें हम अपना signature step कर सकें, which generally we do at the start of our show. Today we have another sage with us from the HR fraternity, Mr. Ali Gohar, who is basically an HR professional, with 15 years of experience, and he has been associated with the leading tech industry of the Pakistan, leading tech companies of Pakistan, including Systems, Cure MD, NetSol, and Engro as well. And now he has joined as a lead talent acquisition, global talent acquisition at Gelato, which is a Norwegian unicorn. And he has worked in different verticals of HR, including talent acquisition, organizational development, culture. He loves to build teams and processes and systems as well. And now we're gonna get into the conversation with Ali, and we will be asking quite challenging questions from him, because we really want to make him shake in terms of his thought processes, and we want to make sure that he's talking from his heart, mind and soul. So assalamu alaikum Ali, how are you doing? वालेकुम अस्सलाम. अभी से पहले तो ठीक था. I don't know about now. थोड़ा डरा दिया आपने. Okay, एक तो इंट्रोडक्शन मैंने आपका दिया. हाँ, सब कुछ कवर किया. मुझे लगता है अभी मैंने बहुत कुछ कवर नहीं किया. कोई ऐसा एस्पेक्ट बताइए तो अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया ना आपके बारे में. कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि which people are not aware from the persona which Ali has shown to the world. Not really. बड़ा सादा सा आदमी हूँ. लेकिन in general it's all about HR mostly. But I have always taken a keen interest in जो भी product हो company की, जो भी वो काम कर रहे हों, उससे जितना मेरा connection हो, मुझे उसको मज़ा आता है उसको समझ के और उसका पार्ट बनकर. इसके अलावा it has been mostly about technology companies. जिसका फ़ायदा रहा है मुझे, because technologies companies ज़्यादातर forward लुकिंग होती हैं. आप नई चीज़ें उसमें ज़्यादा कर रहे होते हैं. आपको ये डर कम होता है कि आपने रेड टेप्स करनी है, ब्यूरोक्रेसी करनी है, तो ज़रा आप enjoy ज़्यादा करते हैं. I know for sure that you love to read books, and you have been associated with the radio for a very long time. Yes. Yeah. That was a hobby. जिस तरह आप फारिग वक्त में शायद कॉइन्स भी इकट्ठे करते हो, स्टैम्प्स इकट्ठे करते हो, मूवीज़ देखते हो, तो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से पॉकेट मनी अर्न करने के लिए रेडियो करता था. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम सिटी एफएम 89 फैसलाबाद. दैट वाज 2005 और टिल 2019 I worked with FM 100, 101, 103. Like I mentioned, I started from 89. And almost all these channels in different cities. Karachi में, Lahore में, Faisalabad में. And now you're working with a global company, and that's another chapter of your life. It's a new exposure. It's a new exposure. It's a different exposure. इत्तेफाक से मैं जिन कंपनी के साथ पहले काम कर रहा था पाकिस्तान में, उनकी क्लाइंटेज तो ग्लोबल होती ही थी, इंटरेक्शन भी होता था. But now this is fun. I mean, one of my team members is, let's say, in Ukraine, or the other could be in England or Spain or Macedonia or Turkey. So that's a lot of fun. कि आप रोज़ाना डिफरेंट मुल्कों के लोगों से इकट्ठा एक ही वक्त में मिल रहे हो, एक ही स्क्रीन पे मिल रहे हो, कभी फिजिकली मिल रहे हो, कभी स्क्रीन पर मिल रहे हो. So that's a lot of fun. That's great. आपने बात की कि as a hobby, you dive into this thing, and it was also a source of pocket money, and it was very good initiative, I must take, getting independent in a very younger age. So do you think जब एक employer जो है किसी candidate का CV देख रहा होता है, because you have spent a lot of years in talent acquisition, how much impact or how much contribution hobby has to play in terms of the persona of the individual? It also depends how you make your pitch. जैसे कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, और मैंने अपने करियर के स्टार्ट में बहुत फनी सी गलती की. मैंने ये किया कि जब मैंने अपना पहला रेज्यूमे बनाया, तो उस वक्त मैं ये अपनी हॉबी कर रहा था, रेडियो वाली. तो मेरी यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर हुआ, और उसके अंदर बहुत सी जगहों पे मैंने अपना रेज्यूमे दिया. अब जब मैं अपना वो रेज्यूमे बना रहा था, तो मैंने समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग को जहन में रखकर अपने एक्सपीरियंस में ये एक्सपीरियंस रखा हुआ था, मेन एक्सपीरियंस के तौर पे. और मेरा ख्याल था कि एक एम्प्लॉयर जब उसको देख रहा होगा, एक रिक्रूटर जब उसको देख रहा होगा, तो कहेगा हाँ इसने कुछ ना कुछ काम तो किया होगा, तो कुछ एज मिलेगा. मेरे बहुत से दोस्तों को इंटरव्यूज की कॉल्स आई जो एग्जैक्टली मेरी यूनिवर्सिटी में थे, मेरे क्लासमेट थे, मेरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे. किसी का GPA मुझसे कम था, किसी का ज़्यादा था. मुझे नहीं आई, मुझे कम आई, या शायद बिल्कुल नहीं आई. तो मुझे उस वक्त की बात समझ में नहीं आई. लेकिन जब उसके बहुत अरसे के बाद जब मैं खुद स्क्रीन के या टेबल के उस साइड पे गया और मैं खुद रिक्रूटमेंट में गया,
तो मुझे पता चला कि एक रिक्रूटर सीवी को कैसे देखता है और वो कितने सेकंड्स में देखता है और कितनी स्पीड में देखता है। और वो जैसे ही कुछ इररिलेवेंट देखता है और वाहिद एक्सपीरियंस देखता है, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पहले वो एक्सपीरियंस पे आता है, फिर एजुकेशन पे आता है, उसकी आइज़ कैसे चलती हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझसे गलती हुई थी और मुझे अपनी हॉबी को कहीं थोड़ा सा हॉबी करके लिखना चाहिए था। हॉबी को हॉबी करके लिखना चाहिए था। मेन एक्सपीरियंस के तौर पर प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था। Okay. First we're gonna have rapid fire. Okay. Okay. And you will be giving an option, okay, option A or option B, right? Okay. And you have to choose. Okay. So the first is, in your opinion, and by the way, here you are not representing during these segments the Gelato or any other company. You are just representing yourself That's as a it. person from the HR fraternity, right? ठीक है। So the first one is KPIs or OKRs? OKRs. OKRs. Why? So KPIs would depend on the job. जो वो jobs हैं जो बहुत routine jobs हैं। बहुत सारी आजकल की jobs routine jobs नहीं हैं, बल्कि वो एक step ऊपर हैं जिसमें आपको integrity चाहिए, जिसमें आपको आपके लोगों का आप पे trust करना important है, आपको उस पर mastery करना important है। उन चीज़ों के लिए KPIs does not fit in. For example, आपका एक KPI है कि आप एक सेल्स जॉब में, तो आप क्या करते हो कि आपको कहा जाता है कि आपने हर क्वार्टर में इतना रेवेन्यू लेके आना है। अब हो सकता है कि उस क्वार्टर के एंड पे आपका एक रेवेन्यू बन रहा हो, लेकिन आप अपना टारगेट हिट कर चुके हो और आपको ये फिक्र पड़ रही हो कि आपने नेक्स्ट क्वार्टर भी तो अपना टारगेट हिट करना है। तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप आपकी वो जो प्रोस्पेक्टिव सेल है वो आप नेक्स्ट क्वार्टर में पुश करने की कोशिश करें। इवेंचुअली क्या हुआ? आपने अपना फ़ायदा कर लिया, शायद ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा नहीं हुआ। तो इट वुड डिपेंड कि आपने वो रिवॉर्ड सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया हुआ। सो उस पर्सपेक्टिव से OKRs आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दीज थिंग्स। All right. Second, working hard or overworking your workforce? Working hard or overworking your workforce, do I have an option of none of the above? None of the above? Okay, you can include. So you will choose none of the above. Yes. Okay. Flexible working hours or 9 to 6? That would depend. अगर यही क्वेश्चन आप मुझसे एक हफ्ता पहले पूछते तो मेरा ख्याल था फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। मैं डेफिनेटली 9 to 6 के हक में भी नहीं हूँ। दिस डिपेंड ऑन द पर्सन। कुछ लोग हैं वो अपने फ्लो में आते हैं, उन्हें रूटीन चाहिए होती है अपने रिदम में आने के लिए, एंड दे मे प्रेफर 9 to 6। दे मे वांट टू वर्क लाइक अ स्विस क्लॉक, कि वो एक वक्त पे उठें, एक वक्त पे सोएं और उस तरह ऑपरेट करें। और कुछ लोग हो सकते हैं कि वो फ्लेक्सिबली काम करना चाहते हैं। इट वुड डिपेंड ऑन द पर्सन। बट हाउ एवर, मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आपके टाइमिंग्स नोट किए जाएं। Yes. You don't believe in check in and check out है। हाँ, आपके टाइमिंग्स, आपके वर्क आवर्स, आपने कितनी इनपुट की उस चीज़ में टाइम के हिसाब से, वो नोट करने के तो मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स हक पे नहीं हूँ। आपने अपना डिज़ाइन कैसे करना है, क्या आपने 9 to 6 करना है, 10 to 6 करना है, फ्लेक्सिबल करना है, वो आपको बेहतर सूट क्या करता है वो आपको करना चाहिए। Okay. Work-life balance or life-work balance? Life-work balance. Life-work balance. Work is a part of life. Yeah. Now we move to the second segment, which is quick takes, and takes. in which you have to either agree or disagree to a statement. Okay. Okay. So the first statement is that key performance indicators are standalone numbers or metrics. They don't convey purpose, path, or progress. You agree or you disagree? Yes, I agree. You agree. Okay. Second, I would like to ask that is organizational development is only about trainings, or organizational development, you know, is something that deals with multiple levels. Like they also have to look into the leadership, coaching for the leadership. They also have to look into the customer experience perspective, the external customers, and also the internal customers, new initiatives, and learning and development. B, of course. B. Can I explain as well? Yeah. So OD is at many times mixed with trainings only. Hargiz nahi. OD is designing the whole thing, designing and structuring the function, the organization, the department. It's not about trainings. Trainings could be a part of it. Do you think that diversity, equity, and inclusion is an overrated topic and is not being executed properly in Pakistan through the HR fraternity? I think I would need to learn more about it. मेरी first take, जो natural take है वो हाँ, it's a yes. It is probably a bit overrated.
it is probably a bit misleading at times how it is practiced. But मुझे ये भी लगता है कि शायद मुझे भी इस टॉपिक पे और रिसर्च करनी चाहिए. Alright. मैं यकीनन इस हक़ में हूँ कि हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. मैं यकीनन इस हक़ में हूँ कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वुमेन की, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको बहुत इंकरेज करना चाहिए. मैं उस तरह इंक्लूजन के बिल्कुल हक़ में हूँ. लेकिन क्या मैं इस हक़ में भी हूँ कि आप कुछ जॉब्स को लेबल कर दें कि लेट्स से हमने आजकल देखा कि HR के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड जॉब है या उनको मिलनी चाहिए. क्या मैं इस हक़ में हूँ? नहीं. सो हाँ, मैं हक़ में हूँ इंक्लूजन के, बट क्या हम उसके लिए सही और अप्रोप्रिएट मेजर्स ले रहे हैं? मेरी अभी तक की नॉलेज तो ये कहती है कि नहीं. Okay. Do you agree that HR fraternity in Pakistan and specifically in Lahore doesn't have the eye for talent? It's a broad statement, blanket statement. As an industry, नहीं. कुछ segments में हाँ और ना होगा, but not as a blanket statement. कुछ लोग होंगे, लेकिन in general अभी हम अपनी knowledge में अपने हमें कैसे चीज़ को करना चाहिए उसमें बाकी दुनिया से काफ़ी पीछे हैं. Okay. Professional attire, should be continued as a must for the corporate jobs, or do you think that, now specifically after COVID, post-COVID, if we look scenario, people have moved towards the lounge suits. So, what do you think that corporate professional attire should be a must or not? I think professional attire तो चलेगा, उसकी definition change हो जाएगी. So if you have given the professional attire क्या है? Yeah, so if you have to define professional attire, how would you define? Whatever you're comfortable in, it should be of course neat, it should be hygienic, it should be neat, it should be appropriate to the place. So basically you should dress for the occasion. अगर आप बीच पर जा रहे हैं और आपने सूट पहन लिया तो नहीं, लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट डिनर पे जा रहे हैं और आप you want to carry a jacket, why not? Okay, so now we will move towards the third segment, which is perspective, and in which we don't have a physical dock in which we will be putting you, but few allegations will be thrown, and you are the judge. He's the oracle. Were you given the role of oracle? Apex. He's the apex. Okay. So he will be making the final judgment. कि आपके ऊपर allegations आप उसको clear कर पाएं कि नहीं कर पाएं. Okay? Okay. So the first allegation on the HR professional, which is generally observed and in people's considered opinion, HR professionals are too internally focused and don't understand the bigger picture of the business. Yes. 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 He's guilty. हमें इस चीज़ पे improve करने की ज़रूरत है. As an industry, हमें इस चीज़ पर improve करने की ज़रूरत है. We are a bit behind on where we should have been. And do you think that to resolve this challenge, there's a concept of dividing HR. So there should dividing be HR? Yeah, there should be HR for the administration role, as a business partner, HR for organizational development. Help, of course. That can be a tool if done appropriately. But it's about mindset mostly. Okay. Second allegation on the HR is that HR focuses on control rather than context. That's a tough one. Mostly in Lahore, in Pakistan in general, context or ये rapid fire तो नहीं है ना? No, it's an allegation. It's an allegation. Okay. So context और other क्या था? Control. Control. They focuses on control rather than context. As a blanket statement, no. हर दफा ऐसा नहीं होता होगा या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता होगा. कितने % आप कहेंगे कि ऐसा होता है? 70 नहीं होता होगा. 70 नहीं होता होगा. हाँ. 30 कौन सा HR चलाते हैं? 70 नहीं होता होगा. होना कॉन्टेक्स्ट पे चाहिए ज़्यादा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 70 तक नहीं होगा. 70 तक नहीं होगा. Because every department is a reflection of the society. हम as a society कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं किसी भी चीज़ के. अच्छा, अभी हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये कैंटोनमेंट के एरिया से कुछ करीब है, तो यहाँ से कोई F-16 गुजर जाएगा तो हम इतना परेशान नहीं होंगे, या कुछ जहाज़ गुजर जाएगा क्योंकि हम एयरपोर्ट के भी करीब हैं. लेकिन अगर यही कोई ऐसी जगह हो जहाँ से एक जहाज़ ना गुजरते हैं और वहाँ पे एकदम से जहाज़ गुजरेंगे तो हम परेशान होंगे. तो कॉन्टेक्स्ट पे तो जाते हैं. Okay, कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं. That's a news for me, but okay, fine. My humble opinion. Okay. That's not an allegation. I would like to ask, any
dark secret from the HR fraternity in terms of कि कोई ऐसी चीज़ जो HR करता है लेकिन शो नहीं करता? HR करता है और शो नहीं करता। हाँ, बहुत दफ़ा आपको एग्जैक्टली पता होता है कि पर्सन ए या बी के साथ क्या इंसिडेंट होने वाला है, क्या उसकी प्रमोशन होने वाली है, क्या उसकी टर्मिनेशन लाइन पे है. No, not in this context. I'm saying. So, for example, there are a group of HR people who are sitting, right, and they're just gossiping. कि यार मैं तो ये ट्रिक खेला है, मैं तो ये करता हूँ जब मैं HR का बजट बनाता हूँ, या मैं HR की कोई ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ, या मैं इस तरह से करवा रहा होता हूँ. तो क्या जनरली ऐसा क्या एक आप लोग यूज़ करते हैं जो नहीं करना चाहिए? I think personal information about resumes. जो रेज्यूमेज आप एक दो चीज़ें, एक चीज़ जो बिल्कुल जो सिर्फ HR नहीं बल्कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो वो है इनफॉर्मल रेफरेंस चेक्स, जो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपके पास जॉब के लिए आया और आपको मालूम था कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो आपने वहाँ अपने किसी दोस्त से पूछ लिया कि हाउ वाज अली एट दिस जॉब. अब ये डिपेंड करता है कि आपने किसको कॉल की है, उसका अली के साथ रिलेशनशिप कैसा था. वो मेरा दोस्त हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो इन्फॉर्मेशन तो है ही फ्लॉड, तो वो तो नहीं करना चाहिए. और उससे प्राइवेसी, अब मैं अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी के लिए आया था तो ये बड़ी प्राइवेट चीज़ थी जो मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, या मुझे पास कंट्रोल होना चाहिए कि मैंने किसको बताना है किसको नहीं. तो अगर वो किसी इस तरह लीक्ड आउट हो जाए तो ये अनप्रोफेशनल है, जो कि HR में होता है और नहीं. And what is the second thing? You said there are two things. रेज्यूमेज और प्रोफाइल्स शेयर करना रिक्रूटर्स में बहुत कॉमन है. मेरे पास जो भी प्रोफाइल्स आ रहे हों और मेरे किसी और दोस्त को चाहिए हो, तो बड़ा चांस होता है कि उस बंदे ने मुझे अप्लाई किया हुआ है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आनी चाहिए, उसका राइट है कि वो सिर्फ मेरे पास रहे, लेकिन वो कहीं और भी फ्रॉड हो रही हो सकती है. Okay. Should not happen. Okay, should not happen. Okay. One statement that just has come to my mind कि इस जनरेशन, अब जो हम वर्क फोर्सेस देख रहे हैं वर्क प्लेसेस के ऊपर, दे आर मल्टी जनरेशनल. दो पहले से भी थी, लेकिन नाउ ह्यूज नंबर ऑफ यंग टैलेंट जनरेशन Z एंटरिंग टू द वर्क फोर्स, राइट? And they are what you call as on fire, financially independent, retiring early concept, right? So they want to be financially independent, and they want to retire early. They want to have their own plans and all that. So do you think this is a very challenging situation for the organizations in terms of fueling up the retention or not? It is very challenging. हमारे लिए अभी इतनी नहीं है because अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं. अभी हम थोड़े से पीछे हैं हर चीज़ में, इसमें भी है. जहाँ पे ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं वहाँ पे ये चीज़ चैलेंजिंग है, और वहाँ पर फिर वर्क के डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको वर्क फोर्स प्रोवाइड ही ऐसे कर रही हैं, जो कि फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा काम करवाना है, आपने एक मॉड्यूल बनवाना है, कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो वो आपको उसी वक्त के लिए 5 लोग प्रोवाइड करते हैं. आप काम करते हैं और वापस चले जाते हैं. तो वो डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं साथ ही फिर उस चीज़ को देखते हुए. तो ये चीज़ें आ रही हैं दुनिया में. Okay. और उसके साथ साथ फिर डायनामिक्स भी चेंज होंगी. And do you think that future is not that far, whereby organizations should allow the young generation to opt for freelancing apart from their? Oh, definitely. Yeah, they should. Definitely. I would, if somebody asks me कि मैं freelancing करूँ अपनी जॉब के साथ या ना करूँ, तो I would say कि ना करो. अगर कोई मुझसे मशवरा मांगे, क्यों? बिकॉज आपका फोकस एक चीज़ पर होना चाहिए. मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एक बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन आप कभी उसमें एक्सेल नहीं कर पाते. लेकिन अगर कोई करना चाहता है, उसमें अच्छा है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं रोकना चाहिए. NDAs इन प्लेस होने चाहिए कि वो कंपेटिटर के पास ना जाएं, आपकी ही चीज़ किसी और के पास ना कर रहे हो, उसके अलावा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो वक्त गुजर गया कि आप उनको रोकना चाहिए. And you think Pakistan HR fraternity is ready to include such kind of concepts of flexi hours, allowing the freelancing, giving comfort to the people at the workplace? असल में बात उनके हाथ से निकल गई है. अब वो आप रेडी है या नहीं है, अब आपको करना पड़ेगा. वो गुजर गया वक्त कि आप कंट्रोल कर सकते थे. अब आप करना चाहें या ना करना चाहें, वो हो रहा है. Based on intention, if you have to give a new name to HR, what name would you like to give it? There is a new name which is used these times, people and talent. मुझे बहुत समझ में नहीं आया. तो आपको क्या समझ में आया वो बताएं. ह्यूमन कैपिटल अच्छा वर्ड है. ह्यूमन कैपिटल थोड़ा पुराना है,
लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक ह्यूमन है। रिसोर्स इतना मजिकल वर्ड नहीं है, बिकॉज रिसोर्स इज कंज्यूमेबल थिंग. ह्यूमन कैपिटल अच्छा वर्ड था, पीपल एंड टैलेंट अच्छा वर्ड है, फैंसी है, मुझे बहुत समझ नहीं आया अभी. ठीक है, तो समझ में नहीं आया अभी. ओके. If given the opportunity to you to pitch any of your idea, your thought, your concept, your initiative, your venture or gelato in 30 seconds. So we call it FaceTime. And how you gonna pitch it in 30 seconds? That's up to you, and your time starts now. Okay, so there is a cliched thing I'm going to speak about, but this is very close to my heart, which is integrity. आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर आपको अपने आप से अपनी जॉब और कंपनी के साथ इंटेग्रिटी बेस्ड रखना चाहिए. बड़ी क्लीशेड बात है, लेकिन क्योंकि हम बहुत मूवीज़ देखते हैं जिसमें, और बहुत सारी मूवीज़ ऐसी देखते हैं जिसमें जो विलन होता है वो लीड होता है, या हम आसपास सुनते हैं कि वो एक मज़दूर था और उसने काम करते करते वो रियल स्टेट का टाइकून बन गया और या आइकॉन बन गया. तो वो उस तमाम चीज़ों की वजह से हमारे दिल में लेफ़्ट राइट होने की बड़ी ख्वाहिशात आती हैं. बट इंटेग्रिटी आपको जहाँ तक पहुँचा सकती है वो शॉर्टकट्स नहीं. Actually, though I have taken like 50 seconds to brief it, but that's okay. Okay. So you talked about integrity, which is very, very important in terms of the tech industry as well, right? And generally, if we talk about as human beings, I have seen a lot of performance appraisal forms in which there is a section for personal competencies rating, and there is a component or a skill called integrity, and they have put a scale on it that rate your employee on integrity on a scale of 1 to 5. Do you think that integrity can be rated on a scale of 1 to 5, or should it be just yes or no option? It's a very good question. It should be a yes or no. Yeah. It should be a yes or no. Yeah. Because either you are you are extending integrity or you are not showing integrity. Integrity, again, it should not be a part of the performance appraisal. Yeah. Because आप उसको नंबर नहीं कर रहे. Yeah. और परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बहुत डिफरेंट तरीके आ गए हैं, वो भी एक अलग बहस है. Yeah. लेकिन इंटेग्रिटी शुड बी अ कोर वैल्यू. वो है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर बनता नहीं है. नहीं होना चाहिए उसको वहाँ पर. When you are setting the direction of an organization, you are defining the business definition, you are defining the values and everything. What do you think, what role, how much role is integral on the part of HR in designing or, crafting or navigating the direction? Most of the part, definitely. एक CEO है जिसने, फॉर एग्जाम्पल, एक वेंचर कैपिटल के साथ मिलकर एक बिजनेस खड़ा किया है. हो सकता है कि उसके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो, काम की नॉलेज हो, विजडम हो, लेकिन ये इक्विपमेंट तो सारा आपने उसको देना है एज एन HR और ह्यूमन कैपिटल, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं. वो उसकी नॉलेज, ये प्रॉपर हार्डकोर नॉलेज वाली चीज़ है जो कि HR से आनी चाहिए. Okay. And what is the major disruption you see in the HR in the coming years? Not far, 2025. I see only opportunities. Disruptions नहीं, मुझे तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं. बिकॉज HR का रोल बहुत बेहतर हो रहा है. अगर आप बेहतर करना चाहें, इम्प्रूव करना चाहें, बट आई वुड सजेस्ट कि हमारे नॉट ओनली इन HR एक पूरी चीज़, एक और भी जिस तरह आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं किसी चीज़ के, वो एक है फेक इट टिल यू मेक इट. वो स्टार्टअप्स के अंदर भी है, प्रोडक्ट के अंदर भी है, HR के अंदर भी है. जो जिस तरह मैंने इंटेग्रिटी की बात की, उसी तरह ऑथेंटिसिटी की बात है ना, कि आपका जो ऑथेंटिक इनसाइड है, जो आप ऑथेंटिकली हो, और जो ऑथेंटिकली आपको लगता है कि आपको करना चाहिए विदाउट फेकिंग इट, दैट्स सुप्रीम इम्पोर्टेंट. Supreme important. Last question. Do you think there should be separate career paths for innovative minds at the workplace, or the same career ladder to be applied on the innovative minds? There should not be career ladders anymore. That is a thing of the past as well. हाँ, it's very important कि और obviously आप बेशक ना भी करना चाहें career ladders बनाना, लेकिन इन टीम मेंबर्स को चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज़ को चाहिए होते हैं, बिकॉज वो जब कहीं और जाएंगे तो उनको एक रेज्यूमे करना है, अपना प्रोफाइल करना है. हैविंग सेड दैट, आपके पास करियर लेडर्स या कॉर्पोरेट लेडर्स की फ्यूचरिस्टिक कंपनीज में गुंजाइश नहीं है. मेरे ख्याल से वो ग्रेडिंग सिस्टम It's gone. फोल्ड करके कहीं फेंक दें. Beaten track is gone. हाँ, बस करें उसको और निकलें उस चीज़ से. मतलब क्योंकि एक ही
रिसोर्स आपके लिए डिफरेंट काम कर रहा हो सकता है आपके एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसका टाइटल आप उसके लिए अच्छा सा कर दें अगर वो चाहता है, और वो जो डिजर्विंग भी है। लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स should be part of the past now. Great. Enjoy. Thank you so much, Ali, Pleasure is all mine. for creating time for your this intellectual contribution to this नहीं thing. आप मुझे रोज बुलाएं, मैं रोज आ सकता हूँ। Great. Now you will be having Ali, most frequently now, I must say. And there is a surprise, but we will launch it soon. But now we will move to the apex of our show, Mr. Khalid Naki, who will wrap up this beautiful and intellectual conversation that we have today. Thank you. I think it was a great session. Ali has touched on a lot of very sensitive areas, and Saira ki questioning भी I think बहुत relevant थी. As per the general understanding, the emerging world of work, उसके dynamics change हो रही हैं, workforce dynamics भी change हो गई हैं, and because of the induction of tech, बहुत सारे functions जो हैं, जो routine operational functions हैं, they are being taken over by tech, and people are lot more dependent and they trust that data a lot more than personal assessments or personal things. दूसरा चीज़ है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी की बहुत रिक्वायरमेंट आ गई हुई है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल HR ने जितने भी उसके फंक्शंस हैं वो सब मेजरेबल होने चाहिए, लोग मांगते हैं। लेकिन चैलेंज दूसरा ये है, जो नई जनरेशन है उनका आउटलुक बहुत डिफरेंट है। दे डोंट वांट टू वर्क लाइक क्लार्क्स और somebody who's being over supervised or somebody is always sniffing on their necks. They want to work, and they're very smart people, and they want to work with their own way of doing things. So I think HR, like a lot of other things, other departments will also face disruptions. As Ali ne kaha, कि disruptions will create opportunities for new role, new talent. And KPIs की बात हुई, इसमें कल्चर की बात हुई। KPI इस तरह का लफ्ज़ है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से आया, कि एक बंदा है उसने 100 शर्ट्स रोज़ निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो उसका KPI हो गया। When you are dealing in service industry और आप KPIs बनाते हो या मैन्युफैक्चरिंग में बनाते हो, KPIs is key performance indicator, कि मेरे से आप कुछ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो परफॉर्मेंस उस वक्त आएगी जब एनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा, रिसोर्सेज होंगी, चीज़ें होंगी, देन ओनली देन आई विल बी एबल टू परफॉर्म। तो ऑर्गेनाइजेशंस अब KPI बनाती हैं, बहुत सारी तो एज इम्पल्सिवली बना देती हैं, विदाउट लुकिंग इनटू द कल्चर, द एनेबलिंग एनवायरनमेंट and the likes, which are very critical for the determination of KPI, and to make somebody, you have to make sure that you help the individuals in achievement of those KPIs, rather than blocking their performance and then expecting that they will perform. और जो बहुत important चीज़ है, हम देखते हैं mergers हो रहे हैं, acquisitions हो रही हैं, बायआउट्स हो रहे हैं, रिवर्स टेक ओवर्स हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला आता है कल्चरल एडजस्टमेंट ऑफ द टू कंपनीज। वारिद की और मोबाइल लिंक का मर्जर हुआ, तो इट वाज अ वेरी स्मार्ट मर्जर। उन्होंने पहले चीफ पीपल्स पर्सन बुला के बिठा दिया, जिसने ह्यूमन कल्चरल की एडजस्टमेंट की, उसके बाद आप टेक्नोलॉजिकल कल्चर पे आते हो, उसके बाद फिजिकल कल्चर पे आप आते हो, बट इट वेंट वेरी स्मूथ। ऑन द अदर हैंड, लॉट ऑफ अदर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, दे वर डिजास्टर, एंड दुनिया भर में कोई 70% तो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाते, वो ब्रेक अवे हो जाता है उनका। तो आई थिंक HR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, लेकिन इट्स गोइंग टू फेस न्यू डायमेंशंस, न्यू चैलेंजेस विद न्यू टेक कमिंग, एंड बहुत कुछ ऑटोमेट हो गया है। तो HR ने रोल क्या प्ले करना है, दिस इज़ द क्वेश्चन, एंड विच वी वुड लाइक यू गाइज टू कमेंट कि HR का इमर्जिंग रोल क्या है, so that we can further explore and expound on that. Thank you very much. Hi everyone. So when I was briefed about Wobble Hearts today, I was excited. I was told, and then I saw and witnessed myself that it's all about authenticity. It's all about creating that knowledge base. कि different organizations, for example HR within a department, अपने लोगों को कैसे लिफ्ट कर सकता है, उसमें नई चीज़ें कैसे आ सकती हैं, अवेयरनेस इन जनरल कैसे क्रिएट की जा सकती है। बहुत अमेजिंग काम ऑलरेडी हो रहा है दुनिया में, पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, और बहुत सारा अमेजिंग काम अभी और हो सकता है। हमें काफ़ी चीज़ें कैचअप भी करनी है, और उन चीज़ों को कैचअप करने के लिए प्लेसेस लाइक वॉबल हार्ट्स एंड अदर सच अमेजिंग इनिशिएटिव्स बाय आइडियाज़ ट्रेनिंग एंड ऑफ कोर्स अदर पीपल हू एवर आर डूइंग इट is a must have thing, and I wish them all the best.